What's up guys, welcome back to another brand new video. If you are new to the channel, hi, my name is Nafisa and I am MPhil psychology student at GC University Lahore. Today's video I'm gonna be showing my favorite productivity and notes taking app, which is Notion. In today's video I will give you a little tour to my Notion app. So this app over here is Notion. Each one of these notebooks have many different sections underneath. Here we got a notebook related to academia, which sort of is like a library. Here I keep track of anything and everything related to my academia. Then I got index here where I keep track of some of the personal things. Then I have got my resonance calendar, my bookshelf, my movie club, and my to-doist, my writings, the references hub, my journals, my habit trackers, my project managers where I keep track of different projects that are going on in my life, my creativity hub, and the spiritual hub. And because today my main motive or aim for this video is to show you guys how I take my notes using Notion, so I think this is where I'm gonna start my Notion tour. So this over here is my MPhil space. Here I keep track of all my courses that I have covered in my MPhil, and each one of these blocks contain wealth of information underneath. So this first little guy over here contain my SPSS and stat course. So let's explore what we have in it. So yeah, now you can see this little click has opened a brand new page for us where you can see the different sections. This new page is nothing but an extension of my MPhil space. Okay, these pictures that you are seeing here is a sort of gallery view. Okay, आप इस व्यू को चेंज भी कर सकते हो. So यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्टर एनालिसिस, पैरामेट्रिक, डिस्क्रिप्टिव एंड correlation, t-test, non-parametric test, reliability analysis. So just to give you a quick idea of how I do my notes and how I arrange them, let's have a quick review of this ANOVA and MANOVA test that I have studied in my stat course. So अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने अगेन एक गैलरी व्यू बनाया हुआ है और इस गैलरी में आप लोग देख सकते हैं 1 बाय अनोवा, फैक्टोरियल अनोवा. इसमें जो जो चीज़ें मैंने अपने कोर्स में पढ़ी हैं उन सब को मैंने इन टॉगल लिस्ट के अंदर अरेंज करके ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है. द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस गैलरी व्यू इज़ दैट you can get an idea of all the topics that you have in page from the outset. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने टॉगल लिस्ट बनाई हुई हैं कुछ. इनमें हर टॉगल लिस्ट के नीचे मैंने डिफरेंट नोट्स अरेंज करके रखे हैं. सो या दिस इज़ हाउ आई टेक नोट्स फॉर माई SPSS एंड स्टैट कोर्स. अपने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैंने इसी तरह से अपने नोट्स को सॉर्ट आउट किया था. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एकेडेमिया, जिस पे बल्कि आजकल भी मैं काम कर रही हूँ, एंड दैट इज़ माय डिजर्टेशन मास्टर पेज. ठीक है, आजकल क्योंकि मैं MPhil डिजर्टेशन पे काम कर रही हूँ तो लेट्स एक्सप्लोर व्हाट वी हैव इन इट हियर. यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये मेरे MPhil डिजर्टेशन का मास्टर पेज है. ठीक है, इसमें मेरे MPhil की रिसर्च से रिलेटेड जितना भी डाटा है, जितना भी कंटेंट है, वो सारा इसमें मौजूद है. इसमें अगर आप लोग यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव दिस टेबल ऑफ कंटेंट थिंग हियर, जिसमें यहाँ पे मैं बल्कि आपको दिखाऊंगी भी कि ये सोर्स एंड नोट्स में मैंने क्या चीज़ रखी हुई है, एंड यहाँ पे ऑल द अदर स्टफ एज वेल. उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो ये मेरी टाइमलाइन है जिसमें मैं अपने जो प्रोग्रेस है थीसिस की उसको ट्राई करती हूँ. फॉर एग्जांपल प्रपोजल एंड सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, and then I have conducted the interview, then I have transcribed it, and now I am on my item generation phase. उसके अलावा अगर आप लोग इस डेट कॉलम को देखें तो यहाँ पे मैंने अपनी थीसिस की जो डेडलाइन है या जो मेरी डेट है डिफरेंट सेक्शंस को कवर करने की, उसको मैंने मेंशन किया हुआ है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये एक न्यू पेज के तौर पे मेरे सामने ओपन हो जाएगा जिसमें मैंने मज़ीद पेजेस को रखा हुआ है. ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू आवर मास्टर डिजर्टेशन पेज. जस्ट टू गिव यू अ क्विक
view as to how I arranged my dissertation. Let me walk you through these sources and notes pages. Okay, यहाँ पे इस पेज के अंदर मैंने अपने थीसिस के डिफरेंट चैप्टर्स को अरेंज करके रखा हुआ है. तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये भी सारे पेजेस हैं एंड अंडर ईच पेज आई हैव ton of information. Okay, so this was a little tour to my dissertation page. Now let's get back to our main academia page. But before that, I want to show you one more thing, and that is what you guys can do with this table over here. Okay, so because this is a timeline table, तो हो सकता है कि मैं इस टेबल को एक कैलेंडर की फॉर्म में देखना चाहूँ, सो दैट मैं जो अपकमिंग डेट्स हैं उनको ईजिली व्यू कर सकूं. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगी और ये चीज़ मुझे डिफरेंट व्यूज़ पे ले जाएगी. ठीक है, तो एक जो चीज़ मुझे बहुत अमेजिंग लगती है नोशन की, वो ये कि आप एक ही टेबल को गैलरी की फॉर्म में देख सकते हैं, आप उसको कैलेंडर की फॉर्म में देख सकते हैं, आप उसको बोर्ड की फॉर्म में देख सकते हैं, लिस्ट की फॉर्म में देख सकते हैं. ठीक है, तो ये दीज आर ऑल द डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू कैन डू विद योर डेटाबेस. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैलेंडर व्यू देखना चाहती हूँ, तो यू गाइस कैन सी हियर कि मेरा जो टेबल है वो एक कैलेंडर में कन्वर्ट हो गया है. यहाँ पे इस टेबल में हम इजीली व्यू कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट 10 तक मुझे अपनी आइटम जनरेशन की फेज़ को कंप्लीट करना है. यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अपकमिंग जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं इजीली एक्सेस कर सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ कैलेंडर. ठीक है, और इस कैलेंडर में भी अगर मैं कहीं भी क्लिक करती हूँ तो ये चीज़ मेरे लिए एक न्यू पेज के तौर पे भी ओपन हो सकती है. ठीक है, लेट्स कन्वर्ट इट बैक इनटू इट्स टेबल व्यू. ओके, सो चलें अब हम दोबारा से अपने एकेडमिया पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए और कौन कौन से डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं जो हम लर्न कर सकते हैं. यहाँ पे अगर आप लोग देखें, दिस इज़ माय CSS हब. यहाँ पे मैंने डिफरेंट अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अरेंज करके रखा हुआ है. यहाँ पे साइकोलॉजी, एसे, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल स्टडीज़. और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि हर गैलरी के अंदर मज़ीद कौन कौन से पेजेस मौजूद हैं. ठीक है, उन पेजेस में मज़ीद आगे जो डिफरेंट स्टफ़ है वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो. यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एट द एंड आई डू हैव दिस GK preparation, interview preparation database, and all the jobs that I have applied for over here, my vocab page here, and this PPSC stuff जो कि मैंने प्रिपेयर किया रिसेंटली एक टेस्ट के लिए. उसमें जो चीज़ें मैंने तैयार की उन सब का कैटलॉग मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है. यहाँ पे डॉन ओपिनियन पेज है, इसमें मैं जो डिफरेंट ओपिनियंस डॉन के जो मुझे हेल्पफुल लगते हैं उन सब मैंने अरेंज करके यहाँ पे रखा हुआ है. और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने हर एक के सामने टैग्स डिफरेंट दिए हुए हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, FATF, एग्रीकल्चर. एंड जो मुझे सबसे अमेजिंग चीज़ लगती है वो ये कि अगर आप इनमें से अपनी इस पूरी लाइब्रेरी में से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ओपिनियन हैं या जितने भी पेजेस हैं उन सबको जस्ट एक टाइम पे देखना चाह रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन को देखना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि एजुकेशन के अलावा बाकी ये ECP और बाकी वाटर इशू और ये सारे बिल्कुल हाइड हो जाएँ और जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखे हुए हैं वो सारे मेरे सामने शो हो जाएँ पेजेस. तो यहाँ पे आपको नोशन टेबल में फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है. ठीक है, ये जो 3 डॉट्स हैं अगर आप लोग इन पे अप्लाई करें तो आप इस फ़िल्टर के ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं, और फ़िल्टर के ऑप्शन को एक्सेस करने के बाद आप इसमें मज़ीद फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें फ़िल्टर ऐड करना चाहती हूँ टैग्स की फॉर्म में. ठीक है, तो जो टैग है वो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल चाहिए एजुकेशन. जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड मैंने आर्टिकल्स अब तक इकट्ठे किए हैं वो मैं सारे यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकती हूँ. उनके जो क्वेश्चंस हैं वो जो मैंने फॉर्मुलेट किए हुए हैं वो यहाँ पे मैं इजीली एक्सेस कर सकती हूँ. ठीक है, तो ये अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये सारे के सारे एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट जो ओपिनियंस हैं वो शो हो जाएंगे. एंड द सेम गोज़ फॉर द अदर इश्यूज़ एज वेल. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लाइमेट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो जितने भी आर्टिकल्स हैं या ओपिनियंस हैं उनको मैं एक्सेस करना चाहती हूँ
तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगी और आप यहाँ पे देखें ये लोड हो रहा है और जितने भी मेरे क्लाइमेट इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो सारे यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये फ़िल्टर ख़त्म हो जाए और जो मेरा पहले वाला एक व्यू था वो मैं उसको दोबारा से एक्सेस कर पाऊँ, तो ये मैं यहाँ पे जाके रिमूव कर दूँगी अपने फ़िल्टर को एंड यू गाइज विल सी कि आफ्टर सम टाइम जो मेरा टेबल है वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई कीप ट्रैक ऑफ द थिंग्स। दो ये मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट का पार्ट है और इस पे अभी तक मैंने खुद भी कुछ बहुत थारो वाला काम नहीं स्टार्ट किया हुआ, बट आई गेस इससे आपको एक आइडिया तो हो ही गया होगा कि आप अपने नोट्स को या आप अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। आई होप कि मैं फ्यूचर में कभी आपको अपने इस CSS हब का एक थारो टूर करवाऊंगी और दिखाऊंगी मैं कि मैंने इसमें चीज़ों को किस तरह से अरेंज करके रखा हुआ है। नेक्स्ट CSS हब के बाद कम्स माय वर्कशॉप एंड कोर्सेज हब। यहाँ पे मैंने डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं, जो डिफरेंट मैं वर्कशॉप्स अटेंड करती रहती हूँ, उन सब की एक कंप्लीट आप ये कह लें कि उनको मैंने सॉर्ट आउट करके यहाँ पे रखा हुआ है। और दिस इज़ द सेम लाइक अगर इसमें से मैं किसी पे भी क्लिक करती हूँ तो वो मुझे मज़ीद एक न्यू पेज पे ले जाएगी जहाँ पे मज़ीद मैंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सॉर्ट आउट करके रखा हुआ होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर माई एकेडमिया पेज। Now let's move on to our next notebook. Which one is it? So now we are back to our home page. होम पेज पे हमारी नेक्स्ट नोटबुक इज़ अबाउट इंडेक्स। इंडेक्स में मैं अपने पर्सनल जो चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोट्स मुझे अच्छे लगते हैं, पोइट्री जो मुझे अच्छी लगती है, इमेजेस, प्लेलिस्ट, उसके अलावा जो चीज़ें मैं ख़रीदना चाहती हूँ उन सब का मैंने एक ट्रैक रखा हुआ है। देन हेयर कम्स द ऐप पेज जहाँ पे ऐप्स की सजेशंस जो मुझे डिफरेंट सोर्सेज से मिलती है वो मैं यहाँ पे उसका ट्रैक रखती हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट नोटबुक दैट इज़ रेजोनेंस कैलेंडर। ओके, सो ये जो रेजोनेंस कैलेंडर है ये बेसिकली इसका आइडिया मैंने अली अब्दाल से लिया था, ठीक है। ही इज़ अ ग्रेट प्रोडक्टिविटी गुरु एंड अ फेमस यूट्यूबर एज वेल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो डिफरेंट टॉपिक्स मुझे पसंद आते हैं या जो मुझे अच्छे लगते हैं, रेजोनेट करते हैं जो मेरे साथ, उनको मैं उनकी समरी बना के या फिर उनको एज इट इज़ सेव कर लेती हूँ अपनी इस रेजोनेंस कैलेंडर के अंदर, ठीक है। इसका फ़ायदा मुझे क्या होता है कि जो पुरानी चीज़ें जो मैंने किसी टाइम में देखी थी उनका एक ट्रैक मेरे पास यहाँ पे मौजूद होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई न्यू चीज़ सीखती हूँ तो मैं अपने इस रेजोनेंस कैलेंडर या आप ये कह लें कि मेरे लिए एक सेकंड ब्रेन की तरह है, मैं यहाँ पे जाती हूँ और चेक करती हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे सामने देखें तो ये डिफरेंट आपको टैग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ, कोई ऐसे लिख रही हूँ या एनीथिंग, तो मैं सिंपली अपने इस रेजोनेंस कैलेंडर में आऊँगी, यहाँ पे मैं फ़िल्टर पे जाऊँगी और जाके मैं यहाँ पे फ़िल्टर ऐड कर दूँगी ऑफ टैग्स। और वो टैग मुझे चाहिए जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या हम देख रहे थे, डिसीजन मेकिंग, चलो साइकोलॉजी कर लेते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे, तो इसमें से फिर मैं उनको सिलेक्ट कर सकती हूँ। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं काउंसलिंग से रिलेटेड टॉपिक्स देखना चाह रही हूँ, मैं कोई वीडियो बनाना चाह रही हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड, या फिर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं कोई पर्टिकुलर लाइक ऐसे लिखूँ या एनीथिंग जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड है, या मैं किसी की काउंसलिंग करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगी और इससे रिलेटेड जितने भी काउंसलिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पे मेरे सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द रेजोनेंस कैलेंडर वर्क्स। सो या थैंक्स अगेन टू अली अब्दाल फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी दिस अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ a resonance calendar, which for me is equal to second brain. Okay, so now let's get back to our home page and see what we have next. We have here our bookshelf. ओके, सो दिस इज़ काइंड ऑफ वर्चुअल लाइब्रेरी फॉर मी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये मेरी टू रीड बुक्स हैं जो अभी मैंने पढ़नी है, जो मुझे डिफरेंट सजेशंस मिलती हैं कहीं से भी, उन सबको मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ।
यहाँ पे मेरी अंडर प्रोसेस बुक्स हैं, ठीक है, जो मैं अभी रिसेंटली पढ़ रही हूँ। और जब मैं ये बुक्स कंप्लीट कर लूँगी तो मैं इनको उठा के अपने इस रीड वाले सेक्शन में ड्रैग कर दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो दिस 40 रूल्स ऑफ लव आई हैव रेड इट, तो इसको यहाँ से मैं उठाऊँगी और इसको ड्रैग करके अपने रीड सेक्शन के अंडर इसको मूव कर लूँगी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, सो हम वापस अपने होम पेज पे आ गए हैं। अब देखते हैं कि बाकी हमारे पास क्या है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये मेरी रेफरेंसेस हब है। जो भी यूज़फुल रेफरेंसेस मुझे मिलते हैं वो सारे मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ। देन हेयर कम माय जर्नल एंड टू डूइस्ट। यहाँ पे जो भी काम मैं प्लान कर रही होती हूँ, डिफरेंट चीज़ें, उनका ट्रैक मैं यहाँ पे जर्नल एंड टू डूइस्ट में रखती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मेरा क्रिएटिविटी हब है जिसमें मैं डिफरेंट जो मेरे साइड हसल्स हैं, जो मेरे हॉबीज़ जो मैं करना इंजॉय करती हूँ आम रूटीन लाइफ में, फॉर एग्जांपल ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड द स्टफ, तो उसका मैं यहाँ पे ट्रैक रखती हूँ। एंड अदर थिंग दैट आई थिंक माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज इज़ दिस प्रोजेक्ट मैनेजर नोटबुक। यहाँ पे अगर आप देखें तो आई हैव दीज डिफरेंट पेजेस जहाँ पे मैं अपने कॉन्टेक्ट्स वगैरह, अपने जो प्रोजेक्ट जो मैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ जो मैं अवेल करना चाहती हूँ इन द फ्यूचर, और इस तरह की जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनका ट्रैक मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स जिन पे मैं काम कर चुकी हूँ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अपकमिंग हैं जिन पे मैं काम करना चाहती हूँ, उनका ट्रैक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक अपनी नोशन वेबसाइट भी क्रिएट की थी रिसेंटली, जिसमें मैंने जो डिफरेंट साइकोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और जो डिफरेंट पास्ट पेपर्स हैं जिनको मैंने खुद सॉल्व किया था ड्यूरिंग माय ऑन प्रिपरेशन, उन सब का मैंने यहाँ पे ट्रैक रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेक्चर साइकोलॉजी के जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो डिफरेंट बच्चों का रहा, उनके जो क्वेश्चंस हैं उन सब का कैटलॉग यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे नोट्स हैं जो पास्ट पेपर्स के साइकोलॉजी के CSS PMS के नोट्स हैं, उनका कैटलॉग यहाँ पे है। तो दिस वेबसाइट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपरेशन के लिए इनफ मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये साइकोलॉजी के MCQs हैं। इस वेबसाइट पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास PPSC के पास्ट पेपर्स मौजूद हैं, जितने भी लेक्चरशिप के पंजाब पुलिस में जो भी पास्ट पेपर्स उसके इन रिसेंट ईयर्स में हुए हैं, CSS साइकोलॉजी के पास्ट पेपर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो या नाउ वी आर बैक ऑन आवर होम पेज। here I guess I have explained all the things। यहाँ पे ये एक इनबॉक्स थिंग रह गई है। इसमें बेसिकली ये एक टेबल है और इस टेबल में मैं जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो जिन पे मैंने अभी काम कर रही हूँ लेकिन उनको मैंने सॉर्ट नहीं किया डिफरेंट नोटबुक्स में, उन सब का ट्रैक मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। सो या ये जो इनबॉक्स है ये मुझे चीज़ों को अरेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। आम रूटीन में जो भी डंप है वो मैं यहाँ पे अपना ब्रेन डंप यहाँ पे रखूँगी, और जब मैं वीकेंड्स पे या कभी भी मूड में हूँ अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के, तो मैं यहाँ से चीज़ें निकालूंगी और उनकी रिस्पेक्टिव जो नोटबुक्स हैं वहाँ पे मैं उनको ड्रैग कर दूँगी, ठीक है। उसके अलावा एक और मेथड जो मैं नोशन में अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए यूज़ करती हूँ, दैट इज़ दिस सर्च डायलॉग बॉक्स, ठीक है। दिस इज़ समथिंग दैट आई यूज़ अ लॉट। मोस्टली मैं इस मूड में नहीं होती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को उसकी नोटबुक में जाके तलाश करूँ और जाके मैं उसको एक्सेस करूँ, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगी और जो भी चीज़ मैं एक्सेस करना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पे लिखूँगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मैंने खुद से हाईलाइट किया हुआ है शो योर वर्क का पोर्शन, वो यहाँ पे मैं इसको इजीली एक्सेस कर सकती हूँ विदाउट गोइंग फर्दर इनटू माय लाइब्रेरी एंड सर्चिंग फॉर दिस पर्टिकुलर बुक ओवर देयर। आई विल जस्ट सिंपली search it and boom, I can directly access that page from here। okay so now आप लोग देख चुके हैं कि मैं नोशन किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। now it is the time for you guys to learn कि आप लोग नोशन को अपने लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सेटअप को बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप उन 3 चीज़ों को सीख जाते हैं तो नोशन आपके लिए कस्टमाइज़ करना और इसके ऊपर मज़ीद बिल्ड ऑन करना बहुत आसान हो जाता है। द फर्स्ट वन इज़ मेकिंग द पेज,
ठीक है। पेज कैसे बनाते हैं, सिंपल मेथड है, कहीं भी क्लिक करें किसी भी पेज पे, वहाँ पे आपको ये छोटे से डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, दीज आर 6 इन नंबर। तो इनके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टर्न इनटू का ऑप्शन नज़र आ रहा है। टर्न इनटू में ये डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे पेज का ऑप्शन, टेक्स्ट का वगैरह वगैरह। तो इसमें से सिंपल आपने पेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड बूम, देयर यू गो, वी हैव अ न्यू बिल्ट इन पेज हियर विद इन आवर नोशन। ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ ये मुझे न्यू पेज पे ले जाएगा जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया। इस न्यू पेज को जाके मैं नाम दूंगी, कुछ भी नाम दे देते हैं। For example, let's say it's our CSS hub, and then let's add a cover page as well because why not. So here we have it. उसके बाद अब ये न्यू पेज आपके पास आ गया है। इसमें आपने करना ये है सिंपली कि जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं सिंपली उसको लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है। इस न्यू पेज में जो डिफरेंट ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट्स एक्सप्लोर दैम। अगर आप इस कर्सर को इस ब्लॉग के स्टार्ट में लेके जाएं तो आपको यहाँ पे एक प्लस का साइन और कुछ डॉट्स नज़र आएंगे। ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है सिंपली, और फॉर एग्जांपल आपने हेडिंग देनी है। ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे टर्न इनटू, कि ये जो ब्लॉक है ये कन्वर्ट कर दिया जाए किस चीज़ में। फॉर एग्जांपल आई नीड अ हेडिंग 1। ठीक है। हेडिंग 1 फॉर एग्जांपल हम देते हैं क्लाइमेट चेंज की। ओके, सो हियर वी हैव इट। उसके बाद आपने हेडिंग 2 देनी है। ठीक है। हेडिंग 2 देने के लिए भी आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, पेज पे जाएं, हेडिंग 2 का ऑप्शन है। ये इसका ये फ़ायदा होगा कि थोड़ी सी छोटी हेडिंग होगी। ठीक है। उसके बाद मैंने टेक्स्ट एंटर कर लिया। अब मुझे फॉर एग्जांपल बुलेट पॉइंट्स देने हैं। ठीक है। अगेन आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ये डॉट्स को अगर आपको शॉर्टकट चाहिए की, तो शॉर्टकट की के लिए आप यहाँ पे स्लैश का बटन जो आपके कीबोर्ड पे है उसको भी आप एंटर कर सकते हैं, जिससे ये सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बुलेट्स का और जो नंबर लिस्ट है उसका ऑप्शन मिलेगा। इसमें फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐड कर लिया। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आप वो टॉगल वाला फीचर जो आपने मेरे डिफरेंट पेजेस में देखा वो आप लगाना चाहते हो अपने नोट्स में। उसके लिए सिंपल स्लैश प्रेस एंड what you are going to do is scroll down आप जो है वो क्लिक करके भी कर सकते हो, एंड आप यहाँ पे TOG लिखोगे तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो नैरो डाउन हो जाएंगे। ठीक है। और here you have it. So yeah, here we have our toggle feature. यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिखूँगी, what are the climate change इम्पैक्ट्स एग्जाम्पल। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे या आप इस टॉगल लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स में अपने मटेरियल को लिख सकते हो। ठीक है। सो या हियर वी हैव आवर टॉगल फीचर एज वेल। ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो सारा मटेरियल इसके अंदर छुप जाएगा, एंड सेम गोज फॉर आवर अदर क्वेश्चंस एज वेल। इसके ऊपर क्लिक करें, सिंपली इसके अंदर ऐड करें जो भी आप ऐड करना चाहते हो, एंड देयर यू गो। बाकी इसके अलावा जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो आप अपने ऑन पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। टू डू इस्ट है फॉर एग्जांपल, हेडिंग्स हैं, डिफरेंट बुलेट्स, डिवाइडर फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे कोड्स हैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट। अगर आप कोई कोड एंटर करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मुझे एक और फीचर जो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है वो ये कॉल आउट जो डायलॉग बॉक्स है वो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं करना चाहते और आप सिंपल जस्ट उसको दूसरी चीज़ से डिस्टिंग्विश भी करना चाहते हो तो ये आपको, जो मैंने नोशन वाली वेबसाइट बनाई हुई है उसमें आपको डिफरेंट जगह पे ये चीज़ नज़र आएगी। मैंने बहुत ज़्यादा कॉल आउट डायलॉग बॉक्स इसमें यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसमें आसानी से किसी भी वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं। ओके, सो हियर वी हैव अ वीडियो। आई विल जस्ट कॉपी द लिंक फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट इन माई नोशन पेज। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आप इसको एम्बेड करना चाहते हो या बुकमार्क क्रिएट करना चाहते हो। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, आई वांट टू एम्बेड इट, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी और आफ्टर अ वाइल विल हैव अ वीडियो हियर जिसको आप किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहती है, पर्टिकुलरली इन केस जब आप चाहते हो कि सारा जो मटेरियल है जो आपने कंसल्ट करना है वो सारा एक जगह पे मौजूद हो। एक लास्ट चीज़ जो रहती है जो आई गेस आपको सीख लेनी चाहिए, दैट इज़ दिस
टेबल थिंग है, ठीक है। टेबल इनलाइन भी बना सकते हो, फुल पेज भी बना सकते हो। इस टेबल को यूज़ करते हुए ये जो मैंने कानबान बोर्ड बनाया हुआ था अपनी मूवीज़ के लिए, बुक्स के लिए, ठीक है, ये सारा मैंने इसी को यूज़ करते हुए बनाया था। और दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ नोशन, ठीक है। ये चीज़ आपको पूरा एक डेटाबेस बनाने में हेल्प आउट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू नेम दिस टेबल एज CSS hub, and here I want to add the name of different like subjects, for example current affairs, and so yeah, here we have the name of all the compulsory subjects that we are going to cover in our CSS syllabus. यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको एक ब्रांड न्यू पेज पे ले जाएगा जिसमें आप फर्दर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें फर्दर आप पेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है, एंड द सेम गोज ऑन एंड ऑन। Honestly speaking, I can speak hours about Notion. It actually is such a powerful tool. So yeah, you can download the Notion by visiting the link down below. Try it out and see how it improves your own productivity and how you can implement it in your own life. Stay tuned because more videos on Notion setup are on the way. Until then, take care.